student here at the FMH College of Medicine and Dentistry. I'm one of the core team members at CHSR, which is the Center for Health Sciences Research. And this is the fourth and final session of the workshop series that we're conducting this year. We've had one last year as well, and this year we had a four-part series where we covered the basics of research. We had a session on writing editorials, then we had a session on writing case reports, and finally we are conducting a session on conducting a type of original study that undergraduates, people at your level, can conduct easily, especially in a low resource country like Pakistan. So we are going to be focusing on cross-sectional studies. We've already been through the types of original studies that are there. And for more information on that, you can go to our YouTube channel where we will be uploading the previous sessions that we've conducted. Specifically, you can go and look at the introductory session where you can find more information on that. But in a nutshell, an original study is one where the person who is doing the study is the one who is observing or doing an experiment, right? And the way that you can classify, there are many ways in which you can classify original studies, sorry. But one of the classification lies in the definition itself. That is, there are broadly two types of original studies: observation studies or experimental studies, right? Observation studies are where you are observing, and an experimental study is where you are doing experiments, where you are making interventions yourself, right? So that could include RCTs, clinical trials, etc., etc. And under observational studies, are looking at data that has been collected either previously or you are collecting it yourself, but you are not making any interventions as such. You are just observing what is happening, right? You are looking at exposures, you're not looking at interventions per se, or you're not doing them yourself. And cross-section studies are basically one type of observation studies. And as the name suggests, it is information that is collected in a single point in time. So what that means is that it's usually called as a snapshot study as well. Like it is just one snapshot in one time frame, right? And the data that you collect in that one particular time frame in one snapshot, that data is then analyzed and then look at whatever trends you can see, whatever associations, correlations you can make through data analysis. So one more point that I would like to mention before I hand over the floor to our speaker today is selecting a topic. So we've discussed topic selection as well in our first session. We discussed the PICO model with you guys, where you look at a population. So it stands for population, intervention, control, and outcome, right? And you can apply that model in any type of in a topic that you are looking for any kind of study. For example, looking at patient data. Especially, I would recommend that you need to look at the setting that you are conducting the study in. So, for example, if you are based in a hospital where you receive a lot of patients with diabetes, for example, right? So maybe you should be conducting a study on diabetes because it would be easier to collect more data on it. Obviously, this is not a rule. This is published in renowned journals, for example, the Lancet, Journal of Medical Virology, Asian Journal of Psychiatry, etc., etc. So those are very big journals, right? He has a keen interest in medicine and public health, and Dr. Qasim has taken out time from his very busy schedule as an intern to join us for the session today. So over to you, Dr. Qasim. Assalamu alaikum. Am I audible? Welcome, Sam. Yes, you are. Let me share my screen. So you guys can see my screen? Yes, we can. So, Bismillahirrahmanirrahim. So the topic of discussion of today is conducting your own cross-sectional study. It's a research workshop organized by Research Society of FMU.
FMH, and I'm Dr. Qasim, and I'm a graduate of King Edward Medical University, batch 22. So, talking about what is research? अच्छा, काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि रिसर्च असल में चीज क्या है। तो काफी लोग इसको काफी तरह डिफाइन करते हैं। मैं इसे इस तरह डिफाइन करता हूँ कि रिसर्च जो है वो दो चीजों पे है। या तो हम क्रिएट करें न्यू नॉलेज को, या फिर हम जो ऑलरेडी जो पूल ऑफ नॉलेज अवेलेबल है उसमें ऐड ऑन करें। तो ज़्यादातर जो हम पाकिस्तानी हैं वो हम इस दूसरी चीज़ को ही करते हैं अप्लाई, कि हम क्रिएट तो नहीं करते नॉलेज को, लेकिन हम जन जो ऑलरेडी एक पूल ऑफ नॉलेज क्रिएट हुआ हुआ है उसमें हम ऐड ऑन करते हैं चीज़ों को। जैसे अब डायबिटीज मेलाइटिस एक टॉपिक है, हम उस पर कुछ नई क्रिएशन तो नहीं करते एज मेडिकल स्टूडेंट्स या एज डॉक्टर्स। तो हम जो ऑलरेडी पूल ऑफ नॉलेज अवेलेबल है उसमें ऐड ऑन करते हैं। तो ये जो दूसरा पर्पस ऑफ रिसर्च है वो हम फॉलो करते हैं ज़्यादातर। वी टॉक अबाउट व्हाट इज रिसर्च आगे। जैसे आपको ईमान ने बताया कि दो तरह की स्टडीज होती हैं। एक अच्छा, दो तरह की स्टडीज होती हैं। रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो ओरिजिनल स्टडीज होती हैं और एक रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं। इसमें बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जिसमें हम अपनी पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करते हैं वो ओरिजिनल स्टडी होती है। किसी भी सूरत में हम इसे इन्वॉल्व करें, एक इंडिविजुअल को करें, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को करें, पूरी पॉपुलेशन को करें, किसी भी तरह करें, तो वो ओरिजिनल स्टडी होती है। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, हम सिर्फ पब्लिश आर्टिकल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो रिव्यू आर्टिकल हो जाता है, वो एक ओरिजिनल स्टडी नहीं होती। अब हम जो बात करेंगे आज क्रॉस सेक्शनल स्टडीज पे, वो ओरिजिनल स्टडी की एक टाइप है, इसलिए मैंने कहा कि इसको भी थोड़ा सा टच कर दें कि ओरिजिनल स्टडी क्या होती है और रिव्यू आर्टिकल क्या होता है। सो ये एक छोटी सी फ्लो शीट है जिसमें बताया हुआ है कि कितने तरह की स्टडीज होती हैं। एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती हैं और ये कुछ एनालिटिकल स्टडीज होती हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में जो सिंपली हम कहते हैं कि एक नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है और एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। एक्सपेरिमेंट जिसमें करेंगे वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे वो नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी। इसको इंटरवेंशनल या नॉन इंटरवेंशनल स्टडीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल को नॉन इंटरवेंशनल कह देते हैं, एक्सपेरिमेंटल को इंटरवेंशनल कह देते हैं। एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल में भी आगे काफ़ी टाइप्स होती हैं, और ये जो ऑब्जर्वेशनल या नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसकी एक टाइप है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जिसको आज हम डिस्कस करने लगे हैं। बाकी चीज़ों को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्रॉस सेक्शनल स्टडी को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक मैप मैंने बनाया हुआ है। जैसे मैं दरमियान में खड़ा हूँ क्रॉस सेक्शनल स्टडी पे, आप लोगों ने इमेजिन करना है कि मैं एक पर्सन हूँ, मैं दरमियान में खड़ा हूँ। तो आप मेरे सामने एक बंदा खड़ा है। मैं उससे क्या करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि आपकी एज क्या है, हाइट क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका मायोपिया का नंबर क्या है, आपको भी कौन सी डिजीज़ है, आपको कभी स्लीप डिस्टरबेंस तो नहीं हुई, कोई क्रॉनिक डिजीज तो नहीं आइडेंटिफाई हुई आपने, ये वो। मतलब कहने का मकसद ये है कि मैं ना उसके पास्ट में जा रहा हूँ ना उसे फ्यूचर में फॉलो कर रहा हूँ। जो उस वक्त मेरे सामने मौजूद उसकी जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो भी उसके ओपिनियंस हैं या जो भी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ उसी को ही क्या कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी का। जो आपकी पॉपुलेशन है, आप उसका स्नैपशॉट लेते हो। जैसे ईमान ने भी अभी बताया कि जो उसकी प्रेजेंट कंडीशन है, जो भी वो अभी उस वक्त है, आप सिर्फ उसी का ही ऑब्जर्व करते हो और अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हो, ना उसके पास्ट में इंक्लूड करते हो और ना उसे फ्यूचर में फॉलो करते हो। ये बाकी दोनों स्टडीज में होता है। ये भी सिंपल मैंने इसमें करके लिखा हुआ है कि अगर हम जैसे मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ, मेरे पास कोई बंदा आ जाता है लंग कैंसर के साथ सपोजिटली, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं प्रॉब इन करता हूँ 10 साल पहले की उसकी हिस्ट्री में कि उसने 10 साल तक सिगरेट तो नहीं इस्तेमाल किया। या मैं अगर कोई और रिस्क फैक्टर अगर इसमें सोच रहा हूँ, जैसे वो एमआई के साथ आ जाता है, तो मैं देखता हूँ कि वो हाइपरटेंसिव तो नहीं है, या वो डायबिटिक तो नहीं है, या ये। तो मैं प्रॉब इन करता हूँ और उसकी पुरानी हिस्ट्री जानना शुरू कर देता हूँ, कितने साल तक वो सिगरेट पीता रहा, क्या क्या उसमें वो करता रहा, एक दिन में कितने सिगरेट पीता रहा, ये वो। तो ये एक एग्जांपल है कि अगर मेरे पास लाइव इंडिविजुअल आता है और मैं उसकी पास्ट में जा रहा हूँ,
तो ये एक रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी का एग्जांपल हो जाता है। या और हम रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज में इंक्लूड करते हैं रिकॉर्ड्स वाली जो स्टडीज होती हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, हॉस्पिटल के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें देखता हूँ कि कितने एमआई के पेशेंट्स की ना प्राइमरी पीसीआई हुई है सपोजिटली। तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में मैं जाता हूँ और मैं 2 साल पहले का डाटा ले लेता हूँ। तो प्रेजेंट से हम पास्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब पास्ट का डाटा ले रहे हैं। ये भी रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी की एक एग्जांपल हो जाती है। या मैं ऑटोप्सी रिकॉर्ड्स में भी वो इंडिविजुअल्स तो मौजूद नहीं होते क्योंकि उनकी डेथ हो गई होती है, और ऑटोप्सी रिकॉर्ड्स में तो मतलब जिनकी ऑटोप्सी हुई है उन्हीं के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो इस तरह की भी स्टडीज ना रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज होती हैं। अब एक और तरह की स्टडी होती है, उसको प्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को फॉलो करते हैं इन फ्यूचर, जैसे 5 साल के ड्यूरेशन में या 10 साल के ड्यूरेशन में, और उस पर एक स्टडी कंडक्ट करते हैं। वो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज होती हैं। अभी जब जिस पे हम बात कर रहे हैं वो प्रोसेक्शनल स्टडीज हैं। हमने ना उसके पास्ट में जाना है ना उसके फ्यूचर में जाना है। जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स उसी वक्त प्रेजेंट में मौजूद है, हमने सिर्फ उन्हीं पे ही फोकस करना है। चलो, ये एक छोटी सी स्लाइड है जिसमें ये मैंने छोटा सा कंसेप्ट एलेबरेट करने की कोशिश की है कि ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं, और हमने कुछ लोगों को उनमें से सेलेक्ट किया है जिसपे हम एक स्टडी कंडक्ट करेंगे, और उसके बाद जो भी रिजल्ट्स हमारे आएंगे वो हम जनरलाइज करेंगे सारी पॉपुलेशन पे। तो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हम कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे स्टडी करते हैं, और पूरी पॉपुलेशन पे उसको फिर जनरलाइज करते हैं। ठीक है, अब हम स्टेप्स की तरफ जाते हैं डायरेक्टली कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी अगर मैं करना चाह रहा हूँ, एक ओरिजिनल आर्टिकल मैं लिखना चाह रहा हूँ, एक स्टडी कंडक्ट करना चाह रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, अपने हॉस्पिटल में, अपने लोकेलिटी में, कहीं पे भी, तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, उसके स्टेप्स क्या होंगे, उस पे हम अब थोड़ी सी बात करने लगे हैं। तो जो सबसे पहले, जैसे लोग सोचते हैं कि सबसे पहले तो स्टेप यही होगा कि हम टॉपिक सेलेक्ट करें। ये काफ़ी लोगों को काफ़ी मुश्किल लगता है कि टॉपिक हम कैसे सेलेक्ट करें, किस तरह का टॉपिक हो, हम उस पर किस तरह स्टार्ट करें स्टडी करना। सबसे मुश्किल बात, क्योंकि स्टार्ट ही लगता है लोगों को, और वो किस तरह करना है ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और टॉपिक सिलेक्शन का 2-3 ही बातें हैं। जैसे ये 5R क्राइटेरिया काफ़ी मशहूर है टॉपिक सिलेक्शन का। सबसे पहले आपने देखना होता है कि ये टॉपिक आप, मतलब ये रिसर्च आपके लिए फीसिबल है या नहीं, और आपका इंटरेस्ट इसमें है या नहीं, और ये न्यू स्टडी है या नहीं, और ये एथिकल स्टैंडर्ड्स पे आती है या नहीं, और आपकी फील्ड से रेलिवेंट है या नहीं। इन सब चीज़ों को ना आपने माइंड में रखना होता है बिफोर डूइंग और बिफोर सिलेक्टिंग अ टॉपिक टू डू अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 5R क्राइटेरिया। ये लोग इसे इग्नोर भी काफ़ी दफ़ा कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले ना आपने इन्हीं चीज़ों को देखना होता है। इस पे मैं एग्जांपल्स के से भी आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर आपको और भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब ये मैंने 2-3 बातें लिखी हुई हैं कि हम टॉपिक को कैसे सिलेक्ट करें। तो हर किसी की अपनी डोमेन है। जैसे मैं आगे परसू करना चाहता हूँ कार्डियो मैं परसू करना चाहता हूँ सपोजिटली। तो मैं उस हिसाब से अपना टॉपिक सिलेक्ट करूंगा अपनी स्टडी का। या मैं अगर पब्लिक हेल्थ में रहना चाहता हूँ तो मैं पब्लिक हेल्थ रिलेटेड अपना कोई टॉपिक सिलेक्ट करूंगा। तो उसमें ये टिप्स होती हैं कि आप पहले तो अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करें। आप देखते रहें कि कौन कौन सी डिजीजेज यहाँ मैं देख रहा हूँ, या कौन कौन सी कंडीशंस मैं देख रहा हूँ, या इस तरह की चीज़ें। जैसे मेरा एक क्लास फेलो था, उसने सबसे पहले जो स्टडी की थी वो अपने अब्बा जान को रिकरेंट इन्फेक्शंस होते थे रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो उसने सबसे पहले स्टडी उस पे की, क्योंकि वो अक्सर उसे देखता था और देखता था कि मेरे अब्बा को ये इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो मैं इस पे एक स्टडी करता हूँ। तो हर किसी का अपना अंदाज होता है। तो आपने सबसे पहले ना अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना है कि हर टॉपिक्स आपके इर्द गिर्द फिर रहे होंगे, बस आपने उनको ना रिफाइन करना है, ढूंढना है, सर्च करना है, और आगे एग्जीक्यूट करना है। और इसके साथ ये कि आप अपने कोलीग्स, जो लाइक माइंडेड कोलीग्स हैं, उनके साथ डिस्कस करें, टॉक टू योर कम्युनिटी। और टॉपिक सिलेक्शन में इस तरह हेल्प मिलेगी कि भाई क्या टॉपिक सिलेक्ट करें, तुम कोई आइडिया दो, मैं कोई आइडिया दूं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से ना काफ़ी दफ़ा काफ़ी हेल्प हो जाती है। और सबसे पहले आपको अपनी डोमेन फाइंड करनी चाहिए।
जैसे अगर मेरा पल्मोनोलॉजी का इंटरेस्ट है और मैं साइकेट्री के टॉपिक्स ढूंढ रहा हूँ या साइकेट्री में रिसर्च कर रहा हूँ, तो आगे जाकर मुझे बहुत मुश्किल होगी। तो सबसे पहले ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि मेरी डोमेन क्या है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए। और उस डोमेन में फिर आपको इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए। इससे टॉपिक सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प होती है। चलो जी, हम सपोज करते हैं कि मैंने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया एकेडमिक स्ट्रेस इन। तो इसके आगे मैं इसका टाइटल कैसे बनाऊंगा? एकेडमिक स्ट्रेस तो मैंने सोच लिया, या मैं सोचता हूँ मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मैं इस पे एक स्टडी करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं इसमें क्या स्टडी करूंगा, किस तरह मैं इसका टाइटल बनाऊंगा? तो टाइटल बनाने की भी ना कुछ टिप्स होती हैं, वो मैं आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ आगे। ये ये चार चीजें मैंने लिखी हुई हैं। काफी लोग इससे डिसएग्री भी करेंगे, शायद वो कहेंगे क्राइटेरिया कोई नहीं है। लेकिन मैंने जब 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 इन चारों चीजों पे अपने टॉपिक को बेस करके लिखा है, तो मैं फंसता नहीं हूँ। मतलब काफी लोग जो स्टेटिस्टिशियंस हैं या एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वो आपको ना टॉपिक पे फंसा लेते हैं कि ये किस तरह का टॉपिक है, ये आपने क्या लिखा हुआ है, ये क्लियर नहीं है, ये इसमें चीजें आप मिस कर रहे हैं। तो इन चार चीज़ों को अगर आप किसी भी टॉपिक अपने टाइटल में मेंशन करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका रिजेक्शन के चांसेस या कोई क्रिटिक के चांसेस कम होंगे। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट्स भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि स्टडी पॉपुलेशन क्या है, स्टडी डिज़ाइन क्या है और स्टडी सेटिंग क्या है। वैसे तो ये सिंपल ही लग रहा है, स्टडी पॉपुलेशन वही पॉपुलेशन जिसको आप अपनी स्टडी में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जिस तरह आप जनरल पॉपुलेशन को ले सकते हैं, आप ओल्ड पॉपुलेशन को, जीरियाटिक पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, उसे ले सकते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, आप डॉक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, आप मतलब फीमेल पॉपुलेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर आप ब्रेस्ट कैंसर पे कोई स्टडी करना चाह रहे हैं, या आप नर्सिस को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब आप किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। बस आपने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट वुड बी योर स्टडी पॉपुलेशन। स्टडी पॉपुलेशन आपने आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर लें कि आप किस तरह की स्टडी करना चाह रहे हैं। स्टडी डिज़ाइन बेसिकली कि आप कौन सी स्टडी करना चाह रहे हैं। तो आपकी स्टडी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ की, तो आपका स्टडी डिज़ाइन क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगा। और स्टडी सेटिंग वही जो जिस जगह पे आप स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं किंग एडवर्ड से हूँ, तो मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई एक स्टडी करना चाह रहा हूँ, या मैं लाहौर का रेजिडेंट हूँ, तो मैं लाहौर में कोई स्टडी करना चाह रहा हूँ, या मैं पंजाब में कोई स्टडी करना चाह रहा हूँ। तो आपने आइडेंटिफाई कर लेना कि आपकी सेटिंग क्या होगी, ये आइडेंटिफाई कर लेना है। इसके बाद आपके कीवर्ड्स, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किन किन वर्ड्स को अपने टाइटल में शो करना है, और बाकी सबको कहाँ कहाँ एक्सप्लेन करना है। तो कीवर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चार इंग्रेडिएंट्स आपके जब टाइटल में होंगे, तो इंशाल्लाह आपका रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे, और आगे आप प्रोसीड भी इजीली कर सकेंगे। चलो, ये मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक स्लाइड में एक अगली स्लाइड में। इसमें थोड़ी सी ये टिप है कि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जैसे मैं इस टॉपिक को ना, काफ़ी लोग इस तरह लिखते हैं, प्रेवलेंस ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ लाहौर, या प्रेवलेंस ऑफ दिस या इस तरह करके। तो जो प्रेवलेंस और इंसिडेंस है ना, इसका थोड़ा सा है कि होता है कि इन लफ्ज़ को ना, इन लफ्ज़ों को थोड़ा सा ना कॉशियसली यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि एपिडेमियोलॉजी में अगर आप लोग देखें, क्योंकि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं ये सारी, तो एपिडेमियोलॉजी में जो प्रेवलेंस और इंसिडेंस की डेफिनेशंस हैं, उनके डिनोमिनेटर में, मतलब जो टोटल हम करते हैं पॉपुलेशन में, उसमें हमें टोटल पॉपुलेशन लिखनी पड़ती है। मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है, उसमें हमें टोटल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ लाहौर, ये तो एक वेग सी टर्म है। तो अगर मैं इसमें लिखता हूँ कि प्रेवलेंस क्या होगी, तो इसकी तो हर साल प्रेवलेंस चेंज हो जाती है, मेडिकल स्टूडेंट्स बदल जाते हैं, कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस बन जाते हैं, कुछ ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कुछ के एडमिशन्स रुक जाते हैं, और हम सबको हमें पता भी नहीं है कि किस किस मेडिकल कॉलेज में कितने कितने स्टूडेंट्स होंगे और हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी। ये तो चलो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स की होगी, हमें नहीं पता कि ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन कितनी होगी लाहौर में या पाकिस्तान में, या फीमेल पॉपुलेशन कितनी होगी, क्योंकि हमारे पास इस तरह के स्टार्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो टिप यही है कि प्रेवलेंस और इंसिडेंस के वर्ड्स को आप किस कुछ और वर्ड से चेंज कर लें, जिससे ना आपको, जैसे फ्रिक्वेंसी ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस, या इसकी एसोसिएशन हम देख लें स्लीप डिस्टर्बेंस के साथ, या इस तरह की कोई बात। तो अभी मैं ये पढ़ता हूँ, एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ लाहौर, अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अच्छा, इसमें आप आइडेंटिफाई कर लें एकेडमिक स्ट्रेस और स्लीप डिस्टरबेंस मेरे कीवर्ड्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स मेरी स्टडी पॉपुलेशन है, लाहौर मेरी स्टडी सेटिंग है,
और क्रॉस सेक्शनल स्टडी मेरा स्टडी डिज़ाइन है। ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताए थे, ये चार मैंने इसमें फुलफिल किए हुए हैं कि मेरे कीवर्ड्स भी हो गए, मेरी स्टडी पॉपुलेशन भी हो गई, मेरी स्टडी सेटिंग भी हो गई, और स्टडी डिज़ाइन को भी मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया। तो अगर आप इस तरह के टॉपिक डिज़ाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके रिजेक्शंस के चांसेस कम होंगे। और जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल दी है, ये तो एक हेल्थ कंडीशन की, ये मेडिकल स्टूडेंट्स इसमें स्टडी पॉपुलेशन थे, इसमें अब डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स को मैंने स्टूडेंट पॉपुलेशन स्टडी पॉपुलेशन के तौर पे आइडेंटिफाई किया। तो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेवलपिंग एमआई among the healthcare workers of Lahore, a cross-sectional study। इसमें भी आप देखें, developing MI is my keyword, healthcare workers are my study population, and cross-sectional study is my study design। ठीक। चलो अब दो स्टेप्स पहले, अब ये तीसरे स्टेप पे हम जा रहे हैं। दो स्टेप्स मैंने क्या आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है, उसका यही टिप्स हैं कि आपने अपने सराउंडिंग को देखना है, अपने डोमेन को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद आपने टॉपिक एक सिलेक्ट कर लेना है। उससे फिर आपने एक अपना क्या नाम है उसका, टाइटल बना लिया, उसको रिफाइन करके जो भी आपका वो था, आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया था उसको रिफाइन करके आपने एक टाइटल बना लिया। टाइटल के मैंने ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, लिटरेचर सर्च करना है। लिटरेचर सर्च करना है, लिटरेचर सर्च का क्या मतलब है, मतलब आपने एक स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपको कोई ना कोई तो रेफरेंस चाहिए होगा ना, कि मतलब मैं किस तरह की स्टडी करूंगा, मैं पहले से कोई स्टडी तो नहीं हुई हुई या इस तरह का कोई सीन। तो सबसे पहले मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, जो भी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें, तो आप टॉपिक सिलेक्शन के बाद जो आपका जो आपने सारा टाइटल बना लिया होता है, उसको आप एज इट इज गूगल पे कॉपी करें और फिर देखें उस पर क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगर एग्जैक्टली उस पर कोई स्टडी हुई हुई है तो आपके करने का फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर पाकिस्तान में या लाहौर में या आपके इंस्टीट्यूट में ये कोई स्टडी हुई हुई है, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स के स्ट्रेस और स्लीप डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस की एसोसिएशन देखनी, तो अगर किसी ने एक दो साल पहले आपके इंस्टीट्यूट में ये सब किया हुआ है तो आपके करने का जवाब नहीं पैदा होता। तो इससे एक तो नॉवेलिटी चेक हो जाती है और क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि इस तरह की स्टडी पहले हुई हुई है या नहीं। और दूसरा इसका ये होता है कि आप को जो रेलिवेंट स्टडीज़ हैं वो मिल जाती हैं। सबसे पहले आपने गूगल सर्च पे करना है, और उसके बाद ये दो वेबसाइट्स कह लें आप या डेटाबेसेस कह लें या जो भी आपको दिल करता है। जैसे आपने जैसे आपने वीडियोस देखनी हो तो आप यूट्यूब पे देखेंगे। तो उसी तरह अगर आपने रिसर्च आर्टिकल्स देखने हैं तो आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेंगे। वो दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो काफ़ी मशहूर हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। पबमेड काफ़ी मशहूर प्लेटफॉर्म है जिस पे अक्सर लोग अपने आर्टिकल्स को सर्च करते हैं। इसमें प्रीवियसली पब्लिश आर्टिकल्स की एक काफ़ी बड़ी डेटाबेस है इसमें। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 30 मिलियन साइटेशन, तो बहुत कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो इसमें आप जैसे मैं इसमें सर्च करता हूँ एकेडमिक स्ट्रेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस एसोसिएशन, तो इसको मैं सर्च कर लेता हूँ और मेरे पास कोई 2,000 आर्टिकल्स आ जाते हैं या 5,000 आर्टिकल्स आ जाते हैं, जो जितने भी आ जाते हैं। तो आपने इसको स्क्रीन कैसे करना है कि आप किन आर्टिकल्स को आप एज रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे और किन को आप डिस्कार्ड कर देंगे। तो एक तो जैसे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को ही इंक्लूड करें एज रेफरेंस आर्टिकल्स। दूसरी ही मैं इस बच्चों से बात करता हूँ कि आपने एक रूल याद रखना है, आर आर, डबल आर आर आर, जैसे भी आपको मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट रीसेंट आर्टिकल्स आपने अपनी स्टडी में इंक्लूड करने हैं। जैसे अगर आप लिमिट कर रहे हैं कि मैंने 10 आर्टिकल्स इंक्लूड करने हैं, तो और आप दो आर्टिकल्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, एक जो 1999 का है और दूसरा जो है वो 2021 का है, और वो सिमिलर आर्टिकल्स हैं, तो आप जो मोर रीसेंट आर्टिकल है आप उसको इंक्लूड करेंगे। और इसी तरह अगर अगर कुछ पुराना आर्टिकल लेकिन वो बहुत रेलिवेंट आपको लग रहा है तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट रीसेंट आर्टिकल्स, जैसे अब काफ़ी लोग कहते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स की आपने स्टडीज़ को सिर्फ इंक्लूड करना होता है, कि अगर 5 ईयर की स्टडीज़ में भी आपको रेलिवेंसी और इस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही तो आप 10 ईयर्स कर लें या 15 ईयर्स कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा ना रिकमेंडेड नहीं है कि आप 1900 की स्टडीज़ को एज रेफरेंस इस्तेमाल करें। तो बस रेफरेंस स्टडीज़ को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है, उनको डाउनलोड कर लेना है, उन्हें रीड कर लेना है।
इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे आपने कैसे प्रोसीड करना है। जैसे किसी और बंदे ने ईरान में एक स्टडी की हुई है, उसने किस तरह प्रोसीड किया, उसने किस तरह लिखा, उसने मेथड सेक्शन में सारा किस तरह एक्सप्लेन किया हुआ कि मैंने किस तरह ये सारी स्टडी की। तो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। मतलब आप कुछ स्टडीज़ को एज रेफरेंस स्टडीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद आप अपनी राइटअप या अपनी स्टडी शुरू करते हैं। पबमेड के अलावा ये काफ़ी मशहूर ज़माना, एक गूगल स्कॉलर भी एक वेबसाइट है, इस पे भी मतलब हम डेटाबेस है एक, इस पे आर्टिकल्स को सर्च करते हैं और उसी तरह की सारी बातें कि आपने मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट रीसेंट आर्टिकल्स को ही कोट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी बात होगी। हमने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, उसका टाइटल बना लिया, उसके बाद मैंने लिटरेचर में भी देख लिया, जो रेलिवेंट आर्टिकल्स थे उसको मैंने डाउनलोड कर दिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। अब उससे अगला क्या स्टेप होगा? उससे अगला स्टेप है, हमने साइनॉप्सिस लिखना है। साइनॉप्सिस क्या चीज़ होती है, ये भी काफ़ी लोगों का थोड़ा सा मुश्किल होती है इसमें समझने में और लिखने में। तो इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे और इसके बाद फिर हम आगे एक्चुअल स्टडी जो हमारी है उस पे ये लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्यों करना पड़ता है और किस तरह करना पड़ता है, इस पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। क्योंकि ये मेरा मेन टॉपिक नहीं है तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। साइनॉप्सिस राइटिंग खुद खुद एक लेक्चर हो सकता है अगर आप करें, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। लेकिन अब इसमें हम टच करेंगे सिर्फ कि साइनॉप्सिस क्या होता है और इसे किस तरह लिखते हैं। सही। तो मैंने लिखा है कि ये एक रिसर्च प्रपोजल होता है जो साइनॉप्सिस है। या आप लिखते हैं टू गेट एन एथिकल अप्रूवल लेटर फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ये काफ़ी मतलब वर्ड्स हैं जो काफ़ी लोगों को मुश्किल लगते हैं। एक मिनट। अच्छा, so you write a synopsis or research proposal to get an ethical approval letter from your institutional review board। ठीक है, हर इंस्टीट्यूट का अपना इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होता है जो रिव्यू करता है आपके प्रपोजल्स को और अप्रूवल देता है कि आइदर यू कैन डू अ स्टडी और नॉट। तो ये सारा सब प्रोसीजर होता है। आप इस तरह किस तरह लिखते हैं वो हर इंस्टीट्यूट का वेरी करता है। जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, या उनका स्टैंडर्ड है, या उनका सैंपल है, या प्रोफार्मास हैं, ये सारे थोड़े से वेरी करते हैं। अब अपने इंस्टीट्यूट के किसी सीनियर से जो रिसर्च करता है, या अपने किसी मतलब ज्यादातर ना ये कम्युनिटी मेडिसिन वालों के पास ही ये डिपार्टमेंट होता है, या कोई और डिपार्टमेंट। जैसे पिछले जब कुछ सालों पहले हमारे पल्मोनोलॉजी के हेड इसके डीन होते, इसके हेड होते थे, जो पल्मोनोलॉजी के डीन थे वो इसको हेड करते थे इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड कमेटी को। लेकिन अब हमारी कम्युनिटी मेडिसिन की जो एचओडी हैं वो इसे हेड करती हैं। तो ये वेरी करता है कि कौन इसे हेड करेगा या किसके अंडर ये डिपार्टमेंट होगा। उसमें यही होता है कि वो सारे स्टूडेंट्स के प्रपोजल्स को देखते हैं और उसके बाद अप्रूवल्स देते हैं कि वेदर यू कैन डू अ स्टडी और नॉट। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, या ये ज़रूरी इसलिए है कि ताकि आपको एक जस्टिफिकेशन या सर्टिफिकेशन मिल जाए कि यू कैन डू अ स्टडी। बाद में कोई आपको मसला ना हो कि आपने क्रॉस सेक्शनल स्टडी की है, आपने पॉपुलेशन को अपने इन्वॉल्व किया है, तो किस से आपने परमिशन लिया है। या आप किसी के पास जाते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं और नर्सिस से कहते हैं कि मैं पेशेंट्स का डाटा लेने लगा हूँ। नर्स आपसे लड़ पड़ती है कि आपको किसने इजाज़त दी है कि आप यहाँ का डाटा कलेक्ट करें, हम तो अपने पेशेंट्स का डाटा नहीं देते। या आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाते हैं और इस तरह की बात करते हैं। तो अगर आपके पास एक अप्रूवल लेटर होता है फ्रॉम योर आईआरबी कमेटी, तो आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि भाई मेरे पास अप्रूवल है और टू डू दिस स्टडी, तो मैं भाई कर सकता हूँ। अब इसके क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इसमें काफ़ी वेरी करती हैं चीज़ें। जैसे केई का साइनॉप्सिस परफॉर्मा काफ़ी डिफरेंट है। उसमें आप कुछ पहले 2-3 पेजेस हैं जिसमें उनकी ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे उसका प्रिंसिपल ऑथर कौन सा है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या पीआई उसे कहते हैं, जो कि प्राइमरीली एक स्टडी को कंडक्ट कर रहा है, वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हो जाता है, पीआई या को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, या और फिर कोई एक ऑब्जर्वर होता है, या आपका एक सुपरवाइजर होता है जिस जो यूजुअली केई में आपका कोई फैकल्टी मेंबर होना चाहिए। फिर आप किसी डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड होके उसके एचओडी को ऑन बोर्ड लेके आप कोई स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वो वेरी करती हैं। वो आप अपने इंस्टीट्यूट का पूछ सकते हैं अपने सीनियर से या अपने किसी डिपार्टमेंट से कि आपके आईआरबी कमेटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं टू अप्रूव अ साइनॉप्सिस। तो
उसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो लिखनी होती हैं सिनॉप्सिस में। और मेरी स्क्रीन स्टक हो गई है, एक मिनट बस। अच्छा, हम इस स्लाइड पे थे कि आपने किस तरह सिनॉप्सिस क्या होता है, सिनॉप्सिस और आईआरबी कमेटी क्या होती है और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इस पे हमने थोड़ी सी बात कर ली। इससे आगे अब अपन चलते हैं। फिर असेंशियल थिंग्स क्या होती हैं आपके सिनॉप्सिस राइटिंग में। मेरी आवाज़ आ रही है सबको, जो भी 10-15 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ के। यस, आ रही है आवाज। ठीक है। अच्छा, एसेंशियल थिंग्स आपकी क्या होती हैं सिनॉप्सिस राइटिंग में। ये भी काफ़ी वेरी करती हैं, लेकिन ये चीज़ें तो हर इंस्टीट्यूट में एसेंशियल होती हैं, तो मैं इसी को ही थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपने लिखना होता है। जो भी आपने टाइटल सेलेक्ट किया है उसका सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो भी आपने जो रेफरेंस आर्टिकल्स आपने डाउनलोड किए होते हैं उसी से आप देखते हैं, और कुछ चीज़ों को पहले अपने तौर पे उधर से एक्सट्रैक्ट करते हैं जो आपने रेफरेंस आर्टिकल्स लिखे होते हैं, फिर उस आप उनको रीफ्रेज करते हैं। अब एक पैराग्राफ के, तो जैसे भी आप एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब आप ऐसे लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो आप छोटा सा इंट्रोडक्शन उस चीज़ का पहले करवाते हैं। जैसे मैं अब एक सेशन स्टार्ट करने लगा था, तो मैंने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाया। तो इस तरह इंट्रोडक्शन जो है वो बैकग्राउंड होता है किसी चीज़ का, कि हम क्या चीज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आप स्टडी को क्यों करना चाह रहे हैं, उसका क्या रैशनैल है, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड डूइंग दैट रिसर्च। और इसको आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इसमें मेंशन कर देते हैं। और फिर उसके बाद मेथड सेक्शन होता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है साइनॉप्सिस में, कि आप किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे अपनी स्टडी को, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और रेफरेंसेस फिर आप देते हैं कि मतलब जो आपके जो आपने क्या कहते हैं उसे, रेफरेंस आर्टिकल्स जो आपने आइडेंटिफाई किए थे उसको आप एज रेफरेंस इस्तेमाल कर लेते हैं। और साथ ही काफ़ी जो आईआरबी कमेटीज़ हैं वो ये भी रिक्वायर करती हैं कि आप अपने क्वेश्चन एयर जो जिससे आप सैंपल कलेक्ट करेंगे उसे भी आप इंक्लूड करें अपने साइनॉप्सिस में। तो ये ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं आपके साइनॉप्सिस में। अब जो लोग पीछे से भूलते जा रहे हैं, मैं साथ साथ रिवाइज करता जाता हूँ। सबसे पहले हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया, उसका टाइटल बनाया, लिटरेचर सर्च की, कुछ रेलिवेंट आर्टिकल को डाउनलोड कर लिया और उसको रीड किया। अब उसके बाद अब हम साइनॉप्सिस राइटिंग पे आए हुए हैं। उसमें मैंने बताया कि इसके कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन जो है वो स्पेसिफिक होता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, और वो बैकग्राउंड बताता है आपकी रिसर्च का और आपका स्टडी का रैशनैल एक्सप्रेस करता है। ये इसका बेसिक पर्पज होता है। उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका बेसिक पर्पस क्या है। टू डिस्क्राइब व्हाट योर रिसर्च इज ट्राइंग टू अचीव एंड एक्सप्लेन व्हाई आर यू परसुइंग इट। मतलब आप जैसे अब मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज भी है इसके साथ, कि जैसे ये मेरा स्टडी टॉपिक है या ये मेरा स्टडी क्वेश्चन है, कि मैं एसोसिएशन देखना चाह रहा हूँ कि स्लीप डिस्टर्बेंस और एकेडमिक स्ट्रेस की है या नहीं मेडिकल स्टूडेंट्स में। तो मेरा इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। आप कुछ लोग होते हैं वो इसमें 10-15 ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं और कहते हैं भाई हमने बड़े ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, हमारी स्टडी बहुत अच्छी होगी। जो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है ना वो एक या दो ही है, या बहुत रेयर केसेस में 3 मैक्सिमम हो जाते हैं। क्योंकि जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है वो एक दो ऑब्जेक्टिव्स में एक्सप्लेन हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स इस स्टडी का बनाता हूँ, तो मैं कहता हूँ टू स्टडी द एकेडमिक स्ट्रेस अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स। ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। या अगर मैं ये नहीं बनाना चाहता तो मैं सीधा सीधा यही लिख देता हूँ, टू डिटरमिन द एसोसिएशन। अब इसका यही तरीका होता है कि आप लेटर टू से इसे स्टार्ट करते हैं, टू स्टडी, टू डिटरमिन, टू एनालाइज, टू एम, या इस तरह की आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मतलब टू एडजेक्टिव से आप स्टार्ट करते हैं।
तो और टू मैं इसमें जैसे मैं अपना ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ टू स्टडी द एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ लाहौर। ये मेरा ऑब्जेक्टिव बन जाता है, एक ऑब्जेक्टिव। या मैं अगर इसे और करना चाहता हूँ तो टू स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लीप डिस्टर्बेंस या क्वालिटी स्लीप इन मेडिकल स्टूडेंट्स, या इस तरह के काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स आप बना सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप स्पेसिफाइड रहें और एक दो ऑब्जेक्टिव्स में बात खत्म करें। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया, ऑब्जेक्टिव्स लिख लिया। अब तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मेथड सेक्शन का है। अब कुछ लोग कहते हैं साइनॉप्सिस हमने क्या ये सिर्फ हमने अप्रूवल के लिए तो हमें चाहिए होता है, उसके बाद तो हम अपनी स्टडी करते हैं, तो हम साइनॉप्सिस में ना इतनी मेहनत नहीं करेंगे। तो मैं अक्सर अपने साइनॉप्सिस के ही मेथड सेक्शन और इंट्रोडक्शन सेक्शन को अपने राइटर में इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं यही कहता हूँ कि एक ही दफ़ा फिर बंदा मेहनत कर ले। जिसने इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन क्योंकि आपके राइटर में बाद में भी चाहिए होता है, सिर्फ साइनॉप्सिस के लिए नहीं चाहिए, और मेथड सेक्शन भी आपको सिर्फ साइनॉप्सिस के लिए नहीं चाहिए। तो आप एक ही दफ़ा में इस पे मेहनत कर लें और बस थोड़े से चेंजेस करने होते हैं। जैसे आप साइनॉप्सिस में तो लिख रहे होते हैं, आप बिफोर स्टडी आप साइनॉप्सिस लिख रहे होते हैं, तो आप इसमें यही मेंशन कर रहे होते हैं कि आपने आई विल डू दिस, आई शैल डू दिस, इस तरह की मतलब आप बातें करते हैं। लेकिन जब आप रिसर्च में लिख रहे होते हैं उसमें तो क्या, आई स्टडीड दैट, आई यूज दैट, मतलब बस टेंस का फर्क हो जाता है। ये आप पहले से लिख रहे हैं क्योंकि ये प्रपोजल है बिफोर स्टार्टिंग योर रिसर्च, और उसमें तो आप रिसर्च करने के बाद लिख रहे होते हैं अपनी राइटअप को। तो बस ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक हो गया। इसके यही मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। वो भी ये मैंने आपको थोड़ी सी बात बता दी। स्टडी डिज़ाइन क्या चीज़ होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। स्टडी पॉपुलेशन क्या है, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। उसमें आपने इंक्लूड किसको करना है, एक्सक्लूड किसको करना है, उसको स्पेसिफाई कर लेना है। स्टडी सेटिंग आपकी क्या होगी, इसको आपने मेंशन कर देना है। सैम्पल साइज आपका क्या होगा, मतलब अगर एक 40,000 इंडिविजुअल्स की आपका मतलब आपका अगर इंस्टीट्यूट है या आप अपने सिटी से सैंपल ले रहे हैं, तो उसका कितना प्रोपोर्शन आप इस्तेमाल करेंगे वो आपका सैंपल साइज हो जाता है। अब एथिकल कंसिडरेशंस आप लिख देते हैं कि वी विल फॉलो द एथिकल कंसिडरेशंस, और किसी के डाटा को हम फॉर्ज नहीं करेंगे, इसको गलत तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर देते हैं अपने सिनॉप्सिस में। उसके बाद आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, उसका क्या मेथड होगा, क्या प्रोसीजर होगा, इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। और उसके बाद उस डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे ये आप मेंशन कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने मैथड सेक्शन में एक्सप्लेन करते हैं। डाटा कलेक्शन और एनालिसिस पे हम थोड़ी सी आगे भी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा साइनॉप्सिस लिखा गया, साइनॉप्सिस लिख लिया मैंने, इसको जमा करवा दिया। और इसके बाद जी मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा अप्रूवल आ जाता है। आप अप्रूव हो जाते हैं कि आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद डाटा कलेक्शन स्टार्ट करनी है। ऑब्वियसली डाटा आपने अपनी पॉपुलेशन से कलेक्ट करना है। आपने पहले तो आइडेंटिफाई कर ली कौन सी पॉपुलेशन से आपने डाटा कलेक्ट करना है, और फिर आपने मेथड आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपने ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करना है, जिसमें जैसे गूगल फॉर्म्स पे आप डाटा कलेक्ट करते हैं, या फिर आपने हॉस्पिटल में जाके पेशेंट से डाटा कलेक्ट करना है, तो आप कुछ एक क्वेश्चनर बना लेते हैं, उसके प्रिंट आउट्स निकलवा लेते हैं और आपस में डिवाइड कर लेते हैं, जाके उसकी डाटा कलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो यही दो बेसिक बेसिक मेथड्स हैं कि या तो आप ऑनलाइन डाटा कलेक्शन करें या ऑफलाइन डाटा कलेक्शन करें। अब डाटा कलेक्शन के लिए कोई आपको टूल चाहिए होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई क्वेश्चनेयर चाहिए होगा या सर्वे फॉर्म चाहिए होगा। तो उसके बनाने के मैंने ना तो दो तीन तरीके इसमें लिखे हुए हैं कि एक तरीका तो ये है सबसे पहला कि आप अपना ही क्वेश्चनेयर बना लें। इसमें आप लिखते हैं कि मैंने अपना क्वेश्चनेयर एक फॉर्मुलेट किया है और उसको मैं इस स्टडी को करने के लिए ना एग्स यूज़ करने लगा। इसमें एक हैक ही आता है कि जैसे मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसको ना जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि मैंने किस तरह एक क्वेश्चनेयर डेवलप कर लिया, या मैं उसकी वैलिडिटी नहीं चेक कर पाऊंगा। जैसे मैंने एकेडमिक स्ट्रेस को एवेल्युएट करना है मेडिकल स्टूडेंट्स में, तो हो सकता है मेरे क्वेश्चनर में कुछ डेफिशिएंसीज हों या मैंने सही तरह नहीं बनाया हो। तो इसमें ये करना होता है कि जैसे आपकी सैंपल पॉपुलेशन है 200, तो आप क्या करते हैं उसके 10% पे, जैसे 20 इंडिविजुअल्स पे एक पायलट स्टडी करते हैं। मतलब आप 20 इंडिविजुअल्स में पहले ये सर्कुलेट करते हैं, उसके रिजल्ट्स निकालते हैं, उस पर कुछ क्राइटेरियाज लगाते हैं, कुछ टेस्ट रन करते हैं, और उससे आपको ना मतलब आइडिया हो जाता है कि ये वैलिड वैलिड है क्वेश्चन या नहीं। तो इन झंझटों से बचने के लिए इससे नीचे जो तीन तरीके मैंने लिखे हुए हैं, मैं तो ज़्यादातर उन्हें ही अपना लेता हूँ कि पायलट स्टडी ना ही करनी पड़े।
तो उसमें ये हो जाता है कि जैसे काफ़ी काफ़ी दफ़ा आपके इंटरनेशनल क्वेश्चनर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप उन्हें यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने एक स्टडी में यूज़ किया इंटरनेशनल फिजिकल एक्टिविटी क्वेश्चनर, स्लीप डिप्रिवेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस के भी क्वेश्चनर अवेलेबल होते हैं, मेंटल हेल्थ के काफ़ी दफ़ा क्वेश्चनर्स अवेलेबल होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, और भी इंटरनेट एडिक्शन के आपके पास क्वेश्चनर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप इंटरनेशनल क्वेश्चनर्स को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, बस आपने कोड करना होता है अपने मेथड सेक्शन में कि हाँ, हमने एक इंटरनेशनल क्वेश्चनर यूज़ किया है। और एक तरीका क्या होता है, आप एक स्टडी को पढ़ते हैं, आपको लगता है कि भाई इसका इसी का ही मैंने क्वेश्चन है सारा इस्तेमाल करना है, कि सारा कुछ मैंने यही यूज़ करना है, तो आप क्या करते हैं कि उस ऑथर से परमिशन ले लेते हैं। ईमेल्स अक्सर मेंशन्ड होती हैं, तो आप उस पर ईमेल करते हैं कि आप भाई हम आपका, जैसे ईरान में एक स्टडी हुई है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपका क्वेश्चनर यूज़ कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसकी परमिशन देते हैं। कहना तो उन्होंने कुछ नहीं होता, लेकिन कि लीगल वे है कि आप किसी के कॉपीराइट का इशू नहीं फिर होता कि आप किसी का क्वेश्चनर ऐसे में उठा के यूज़ कर रहे हैं, तो आप आपके पास ना परमिशन हो, आपके पास ईमेल प्रूव हो कि मैंने परमिशन ली हुई है या उससे पूछा हुआ है। और ये राइट भी है, जैसे मैं अब मेरा कोई क्वेश्चनर कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं भी उस पर क्लेम करूंगा कि इसने मेरी चीज़ इस्तेमाल की है, तो आपने ये फॉलो कर लेना होता है। या ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये एक जो चौथी चीज़ मैंने लिखी हुई है, अक्सर तौर पे ना हम यही करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो पब्लिश आर्टिकल्स हम पढ़ रहे होते हैं, रेफरेंस आर्टिकल्स, उसके रिजल्ट सेक्शन को देखते हैं। रिजल्ट सेक्शन में जो टेबल्स बने होते हैं, उन्हीं से ही ना हम क्वेश्चनर अपना बना लेते हैं, मतलब उससे आइडिया ले लेते हैं और क्वेश्चनर अपना डेवलप कर लेते हैं। लेकिन इसमें आपने बोंगी ये नहीं मारनी होती कि आप उठाएं तो वहां से क्वेश्चंस और बाद में लिख के आ जाएं कि मैंने अपना क्वेश्चनर बनाया। अपना क्वेश्चनर बनाने का आप जहाँ कहेंगे आपको वैलिडिटी प्रूव करनी पड़ेगी, तो पायलट स्टडी रन करनी पड़ेगी, तो आप सेफ साइड यही होती है कि आप मेंशन कर दें कि मैंने इन रेफरेंस आर्टिकल से अपना क्वेश्चनर डेवलप किया। ठीक हो गया। अब कहाँ तक हम पहुँच गए, हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसका टाइटल बना लिया, साइनॉप्सिस लिख लिया, एथिकल अप्रूवल हमें मिल गया, अब हमने डाटा कलेक्शन स्टार्ट कर दी, अब डाटा कलेक्ट हो गया हमारे पास। हमारे पास जैसे अगर ऑनलाइन है तो वो गूगल शीट्स में आ जाता है, या अगर ऑफलाइन है तो आप एक्सेल में उसे मतलब एंटर कर लेते हैं। उसके बाद आप उसकी एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं। अब डाटा किस किस तरह का होता है और उसका एनालिसिस किस किस तरह करना होता है, ये भी खुद से एक काफ़ी बड़ा टॉपिक हो सकता है, और इस पे काफ़ी बात की जा सकती है, लेकिन हम डीप ट्रैक ना हो तो इस पे थोड़ी सी बात करेंगे और उससे आगे चलेंगे कि डाटा को कैसे एनालाइज करना है। जैसे ऑफलाइन डाटा को मैंने अभी बताया कि आप ऑफलाइन डाटा को एक्सेल शीट पे ट्रांसफर कर सकते हैं और उससे एनालिसिस रन कर सकते हैं। या फिर एक काफ़ी मशहूर जो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने सुना होगा, SPSS, एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आप डायरेक्टली अपने डाटा को एंटर करते हैं और उससे एनालिसिस करते हैं। तो ये दो सॉफ्टवेयर हैं, ये इसको ही बेसिकली ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, एक्सेल है और SPSS है। सर्टिस SPSS स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल, पता नहीं, प्रोग्रामर फोर्स, कुछ इस तरह का ना, मतलब ये आप गूगल करके देख लें कि ये क्या चीज़ होती है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप डाटा एंटर करते हैं और ये आपको ना टेस्ट रन कर देता है और आपका एनालिसिस कर देता है। तो इनको बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। और ये मैं कुछ अभी ये दो टर्म्स हैं कि आपका डाटा किस तरह का है और आपने किस तरह उसको रिप्रेजेंट करना है। तो जो डाटा होता है वो दो ही तरह का होता है, या वो क्वालिटेटिव डाटा होगा या क्वांटिटेटिव डाटा होगा। क्वालिटेटिव, या आपके वेरिएबल्स जो हैं वो क्वालिटेटिव होंगे या क्वांटिटेटिव होंगे। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स भी कहते हैं, मतलब जिनकी रेंज ऑफ वैल्यूज हैं। जैसे मैं कहता हूँ व्हाट इज़ योर हाइट, हाइट में कोई बंदा कहेगा कि मेरी 5.9 है, कोई कहेगा 5.8 है, कोई कहेगा इस तरह, मतलब वेरी करेंगी ये चीज़ें, एक नंबर लाइन पे वेरी कर रहे हैं, तो ये आपकी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका यस नो में जवाब है, जैसे व्हाट इज योर जेंडर, इट वुड बी आइदर मेल और फीमेल, जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, या मैं कहता हूँ कि वुड यू एग्री टू दिस, तो इसका भी जवाब ये होगा यस और नो। इसका भी कोई इस तरह का नहीं, आई आई एग्री 0.1%, आई एग्री 2%, मतलब इस तरह के जवाब नहीं होते। तो जिनका बाइनरी जवाब है या एक दो आंसर्स हैं, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। और जिनका रेंज में जवाब होता है, जैसे एज आपकी क्या है, आपका हाइट क्या है, या इस तरह की जो चीज़ें, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। तो थीम बेसिक ये होता है कि जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, जिनका यस नो में जवाब है या मेल फीमेल में जवाब है या 1 2 3 में जवाब है, तो उनको आप एज फ्रिक्वेंसी और परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आउट ऑफ 505 इंडिविजुअल्स 40 वर मेल
एंड रेस्ट ऑफ देम वर फीमेल्स, या मैं कहता हूँ आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल्स 40% वर मेल एंड 60% वर फीमेल, इस तरह करके मैं लिख देता हूँ। तो ये मेरा क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जैसे मैंने आपको बताया ये कॉन्टिन्यूस नहीं होते, ये बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं, मतलब इस तरह की आप चीज़ तस्वुर कर लें। ये नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं, तो इसमें ये होता है कि आप एज फ्रिक्वेंसी और परसेंटेज इसको डिनोट करते हैं। लेकिन जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, जैसे आपकी हाइट क्या है या आपकी एज क्या है, जिसमें रेंज ऑफ आंसर्स आपके पास आ रहे होते हैं, तो आप उनका क्या करते हैं, आप उनका मीन निकाल लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन उसके साथ मेंशन कर देते हैं। ये सबने ही पढ़ा होगा, एफएससी में भी पढ़ते हैं बच्चे, आगे भी जो कम्युनिटी मेडिसिन वाले पढ़ाते हैं। मीन कैसे निकालना होता है, वो एक एवरेज वैल्यू होती है, सारी वैल्यूज को प्लस करके उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करते हैं, उससे मीन निकल आता है। लेकिन आप सॉफ्टवेयर को यूज करके इजीली मीन निकाल सकते हैं। आप एक चीज पे क्लिक करें कि हमने एज का मीन निकालना है, तो आपको आ जाता है, साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेंशन होती है। तो सॉफ्टवेयर को यूज करके आप ये डाटा एनालिसिस कर लेते हैं। चलो, अब अगला क्या हमारा टास्क है, हमने क्या किया, एक टॉपिक सेलेक्ट किया, उसका टाइटल बनाया, सिनॉप्सिस लिखा, एथिकल अप्रूवल ले लिया, डाटा कलेक्शन स्टार्ट कर दी, डाटा कलेक्ट हो गया, डाटा को एनालाइज कर लिया, एनालिसिस तक हो गया। अब आपने राइटअप पे आना है। राइटअप की वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो क्या कहते हैं, अब मैंने उसको, जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट ही बनाते हैं अक्सर तौर पे, या गूगल डॉक्स पे भी काफ़ी लोग अपना मतलब राइटअप करते हैं। तो इसके भी कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो आपका टाइटल होता है, टाइटल जो आपने पहले से बना लिया। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो समरी होती है आपके आर्टिकल की, वो आपने लास्ट पे लिखनी होती है, कंक्लूजन। एब्स्ट्रैक्ट अब एब्स्ट्रैक्ट कुछ लोग सोचते हैं कि ये टाइटल के नीचे है, तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट ही लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपके पूरे आर्टिकल की समरी होती है, तो आपने ना उसको लास्ट पे लिखना होता है। एब्स्ट्रैक्ट पे थोड़ी सी बात करते हैं। इंट्रोडक्शन पे पहले मैंने आपको बता दिया किस तरह लिखना होता है, उसमें मैं डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके काफ़ी क्राइटेरियाज हैं, काफ़ी लोग उस पर एग्री करते हैं, काफ़ी नहीं। जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं वो यही कि हम सबसे पहले डेफिनेशंस को मतलब लिख लेते हैं। जैसे हमारी जो एग्जांपल थी, हम जिसको लेके चल रहे थे, एकेडमिक स्ट्रेस और मेडिकल स्टूडेंट्स, तो हम एकेडमिक स्ट्रेस किसको कह रहे हैं, हम इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप बयान करते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम, और ये किस तरह हमारे लिए एक प्रॉब्लम है और किस तरह ये अफेक्ट करती है मेडिकल स्टूडेंट्स को। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रॉब्लम में आप लिखते हैं कि इसकी कितनी प्रेवलेंस है पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में, इस तरह करके आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और उसके बाद आप अपने पुरानी स्टडीज को कुछ लिटरेचर रिव्यू देते हैं, जो कि प्रीवियस आर्टिकल्स होते हैं। उसके बाद आप कैप एंड हुक, या इस पर मैं नहीं जाऊंगा इतना ज़्यादा, आप उसके बाद अपना एम ऑफ स्टडी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं इंट्रोडक्शन की। मेथड सेक्शन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। रिजल्ट सेक्शन को मैं थोड़ा सा आगे आगे एक्सप्लेन करता हूँ, डिस्कशन को भी, कंक्लूजन, रेफरेंसेस को भी। इस तरह इसी तरह ही चलते हैं। टाइटल, टाइटल एक्सप्लेन। एब्स्ट्रैक्ट पे आप चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपके आर्टिकल का क्रक्स होता है, इसको मिनी मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। सबसे पहले जो अब टाइटल के बाद जो सबसे पहले जिस चीज़ पे नज़र पड़ती है वो एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। और इट शुड बी रिटन आफ्टर द टाइटल ऑफ योर पेपर, सबसे नीचे उसके लिखा होता है टाइटल पे। तो लेकिन लिखना है आपने लास्ट पे होता है, टाइटल के नीचे लिखा हुआ है, इस पे ये मतलब नहीं कि सबसे पहले यही लिख लेना। और इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब इसकी हेडिंग्स भी बना सकते हैं आप लोग, और हेडिंग्स के बगैर भी बना सकते हैं। और मोस्ट रेड पार्ट ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब टाइटल के बाद जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली चीज़ है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, तो इस पे जरा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बाद में। तो हो गया इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप टाइटल लिखते हैं, उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखने होते हैं। इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ था, अब मेथड्स पे हम आ गए। मेथड्स पे अब बाकी चीज़ें तो एक्सप्लेन ही मैंने पहले कर दी थी। स्टडी डिज़ाइन को आपने आइडेंटिफाई करना होता है, स्टडी पॉपुलेशन को, स्टडी सेटिंग को, सैम्पल साइज को, एथिकल कंसिडरेशन थोड़ी सी मेंशन करनी होती है। डाटा कलेक्शन का भी प्रोसीजर अभी मैंने आपको बता दिया कि आपने अपना क्वेश्चनेयर इस्तेमाल किया, इंटरनेशनल क्वेश्चनेयर यूज़ किया, या आपने जो भी किया वो आप इसमें आइडेंटिफाई कर देते हैं। और डाटा एनालिसिस भी आप लिख देते हैं कि आई एनालाइज्ड माय डाटा यूजिंग SPSS सॉफ्टवेयर, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वर रिप्रेजेंटेड एज फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज, एंड क्वांटिटेटिव वंस वर रिप्रेजेंटेड एज मीन विद स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मतलब ज़्यादातर आप डाटा एनालिसिस प्रोसीजर का जो
सब हेडिंग होती है उसमें यही लिखा होता है। तो सारे इस्तेमाल यही इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब उससे अगला जो आपका पार्ट होता है रिसर्च का, वो आपका रिजल्ट्स होते हैं। रिजल्ट्स वही जो आपने एनालिसिस रन किया होता है आपने डाटा कलेक्शन का, उसको आप समराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और फिगर्स, और फिर आपको उनको डिस्क्राइब कर देते हैं। ये आपका सारा रिजल्ट सेक्शन होता है। रिजल्ट सेक्शन के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका डिस्कशन होती है। डिस्कशन जो है आप उसको किस तरह अलाइन करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका लिखते हैं कि ये किस तरह का, मतलब हम क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, कि एकेडमिक स्ट्रेस क्या है जैसे फॉर एग्जांपल, और वो कितना प्रेवलेंट है। उसके बाद आप जो आपकी की फाइंडिंग्स होती हैं अपनी स्टडी की, उसको समराइज करके लिखते हैं। उसके बाद आप जो प्रीवियस स्टडीज होती हैं उनके साथ कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं। जैसे मेरे सेटअप में, जैसे मैं कहूँ मेरी स्टडी में 40% मेल थे और 60% फीमेल थी। और मैं लिखता हूँ बाद में कि दिस इज इन कंपैरिजन टू अ स्टडी डन बाय दिस इन इटली, और उसमें भी मोर देन 50% फीमेल्स थी। इस तरह करके मैं लिख देता हूँ। या मैं कहता हूँ कि स्लीप डिस्टर्बेंस वाज देयर इन 23% ऑफ द पॉपुलेशन। तो दिस इज इन कंट्रास्ट टू अ स्टडी इन विच 57% ऑफ द पॉपुलेशन वर एग्जिबिटिंग स्लीप डिस्टर्बेंस। तो इस तरह करके ना आप कंपेयर और कंट्रास्ट कर देते हैं प्रीवियस स्टडीज के साथ। उसके बाद आप अपनी अपनी रिकमेंडेशन स्टेट करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस ऑफ योर स्टडी को हाईलाइट कर देते हैं आप। ये डिस्कशन सेक्शन का मेन क्रक्स होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आप कंक्लूड करते हैं अपनी स्टडी को, अपनी सारी डिस्कशन को, जो आपने रिसर्च क्वेश्चन आपने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया होता है उसको आप एक्सप्लेन कर देते हैं। और जो अनरिजॉल्व इश्यूज रह गए हैं आपकी स्टडी कंडक्ट करने के बावजूद, आप उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये सारा कंक्लूजन का क्रक्स है। ठीक हो गया। और उसके बाद आप रेफरेंसेस दे देते हैं। रेफरेंसेस जो भी आपने आर्टिकल्स को यूज़ किया है, इसका मकसद ये होता है कि अगर आप एक ने स्टडी कर ली है, जैसे आप भी अक्सर तौर पे यही होता है कि हमारे पास ना, जैसे हमें 2-3 रेलिवेंट स्टडीज मिल रही हैं उसके अलावा नहीं मिल रही, तो आप उनके रेफरेंस सेक्शन में जाके आप लिटरेचर सर्च कर, मतलब आप उनके रेफरेंस सेक्शन में जाके देख सकते हो कि उन्होंने कौन से आर्टिकल्स साइट किए हुए हैं। फिर आप उन्हीं आर्टिकल्स को यूज करके, मतलब आप भी यूज कर सकते हो। तो एक तो आप रीडर्स को हेल्प कर रहे होते हो टू फाइंड लिटरेचर। जैसे अगर वो एक रेलिवेंट आर्टिकल पे पहुंच गया है, तो उसी के रेफरेंस आर्टिकल्स में वो देख ले और रेलिवेंट आर्टिकल्स। तो आप रीडर्स को हेल्प कर रहे हो। उसके अलावा जो प्रीवियस वर्क हुए हुए हैं उनको एक्नॉलेज कर रहे हो। और आप किसी के मतलब आप किसी का वर्क भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, किससे प्लेजरिज्म भी अवॉइड कर रहे हो। ये सारे बेसिक मकसद होते हैं। ठीक है। इसको ना मैं इस स्लाइड पे फिर से थोड़ा सा आता हूँ कि हमने राइटअप कर लिया। ये हमने राइटअप कर लिया, एक वर्ड डॉक्यूमेंट हमने बनाया, उसमें हमने अपना टाइटल लिख लिया, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख ली, मेथड सेक्शन लिख लिया, रिजल्ट्स के टेबल्स और डिस्कशन और फिगर्स बना ली और उनको एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद डिस्कशन लिख ली, कंक्लूजन लिख ली और रेफरेंसेस दे दिए। ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बन गया, वर्ड डॉक्यूमेंट। अब हमने क्या करना है, पब्लिकेशन की तरफ आना है ऑब्वियसली। अब हमारा एक पूरी रिसर्च हमने कर ली है, इसको पब्लिश कैसे करवाना है ये भी काफ़ी लोगों के लिए मसला होता है। वो यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, उनका आर्टिकल रेडी हो जाता है, लेकिन उसके बाद के क्या स्टेप्स हैं ये उनको नहीं समझ आती। फिर वो अपने सीनियर से कह रहे होते हैं कि हमारे ये आर्टिकल पब्लिश करा दें, हमने लिखा हुआ है, या वो और लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। तो इसका भी यही हक होता है कि जैसे एक पोइट है, वो एक पोइट्री लिखता है, तो वो ये क्या करता है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करता है कि जैसे मेरी पोइट्री है वो इश्क किया है सुपोजिटली। तो मैं ऐसे अखबारों को या ऐसे जर्नल्स को देखूंगा जो, या ऐसे न्यूज़पेपर्स को देखूंगा जो इश्किया पोइट्री को पब्लिश करते हो। अगर एक न्यूज़ चैनल है जो इस तरह की पोइट्री को एक्सेप्ट ही नहीं, पब्लिश ही नहीं करता, तो उधर भेजने का फायदा क्या है। तो सबसे पहले ना आपने आइडेंटिफाई कर लेना होता है कि आपका टॉपिक क्या है और वो कौन से जर्नल के डोमेन में आता है। जैसे अगर मैंने साइकेट्री रिलेटेड टॉपिक किया तो साइकेट्री के जर्नल्स में जा सकता है, मेडिसिन के जर्नल्स में जा सकता है, पब्लिक हेल्थ के जर्नल्स में जा सकता है, लेकिन वो गायनी के या सर्जरी के जर्नल्स में नहीं जा सकता। तो आपने ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेना होता है कि आपका टॉपिक किस तरह का है और आपने किन किन जर्नल्स में भेजना है। इसके बाद ये है कि जैसे आपने हमने मेडिसिन का टॉपिक इस्तेमाल किया है, या एकेडमिक स्ट्रेस को हम साइकेट्री का टॉपिक भी कह सकते हैं, तो आपने इस तरह के जर्नल्स देखने होते हैं। जैसे मैं अब गूगल सर्च पे लिखता हूँ पब्लिक हेल्थ जर्नल्स, में पास एक लिस्ट ऑफ जर्नल्स आ जाती है। उसके बाद फिर मैं
रिफाइन करता हूँ, कुछ जर्नल्स की वेबसाइट्स को देखता हूँ। उसमें मैं उसके एम्स पढ़ता हूँ, इंट्रोडक्शन उनका पढ़ता हूँ, उनका ऑथर्स गाइड पढ़ता हूँ, और चार्जेस देखता हूँ कि वो कितने पब्लिकेशन के चार्जेस लेते हैं। इन सबको देखने के बाद मैं उसमें सबमिट करवा देता हूँ। सबमिशन के भी कुछ प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ। उसके बाद मैं वेट करता हूँ कि वो इसको क्या कहते हैं, रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है। किसी एक जगह से रिजेक्शन हो जाए तो हम किसी और जगह पे मतलब ट्राई कर लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है पब्लिकेशन का, जर्नल हैंडलिंग का और पब्लिकेशन का। तो अब इसको समराइज करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने टॉपिक सेलेक्ट किया था, उसका टाइटल बनाया था। उसके बाद हमने लिटरेचर सर्च किया था, उसके साथ ही हमने साइनॉप्सिस लिखा था, एथिकल अप्रूवल लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, डाटा कलेक्शन स्टार्ट की थी, कोई इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया था, टूल बनाया था, क्वेश्चनर डेवलप किया था। उसके बाद हमने डाटा कलेक्शन स्टार्ट की थी, डाटा एनालिसिस किया था। उसके बाद हम राइटअप पे आ गए थे। हमने राइटअप में इंट्रोडक्शन लिखा था, जो ज़्यादा लोग सिनॉप्सिस वाला इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा था, मेथड सेक्शन लिखे थे, रिजल्ट्स बनाए थे, डिस्कशन लिखी थी, कंक्लूड किया था और अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर ली थी। उसके बाद हमने जर्नल फाइंड किया था, जर्नल में सर्च किया था, उधर सबमिट करवाया था। फिर वेट किया कि हमें कहाँ से अप्रूवल लेटर मिलता है या कहाँ से हमारा आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस था क्रॉस सेक्शनल स्टडी का। और थैंक यू सो मच, होप आप लोगों को समझ आई होगी। और थैंक यू। Thank you so much, Dr. Qasim. You've covered all aspects in detail, and I'm sure that all of us learned a lot, and the participants are now fully equipped um, and can conduct their own cross-section studies. If anyone has any questions, you can drop them in the chat box, or perhaps Dr. Qasim, you can also share your email address, so if that's okay with you, so that they can reach out to you in the future. हाँ श्योर, मैं चैट बॉक्स में अपना ईमेल शेयर कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लें। इसको कोई क्वेरी हो तो आप उस पर पूछ सकते हैं।